friends. We are already at Manjri More's studio. I've logged in a little early. We have a few minutes left still. We're just checking. Hi. Hello. Hi. So a couple of people have already joined in, but we still have time. We are at Manjri More's studio, and there are some amazing works here. You can see her place is filled with amazing artworks. And in fact, there are many more works here also. Loads of works. So we'll be starting. We have a couple of minutes, and I think we'll have a small chat with her. First of all, welcome to our HBAV painting competition demo sessions. You are the first one to inaugurate in this season. Wow. Great. And I wanted to ask you the reference which you chose. What inspired you to do that? Like, Actually, normally what happens, first of all, I choose medium. okay. I mean simultaneously medium and reference both. तो जो मैंने reference photos देखे, तो this was much colorful. Okay. And plus the innocence of that guy was उसको मुझे अच्छा लगा वो. Correct. This was my first this thing, and the second this thing कि I'm using soft pastel and it's a drying media, and you can't, it's not like a wet media, and you can't make appropriate shades out of that, like तो bright colors जो pigments इसमें रहते हैं pastels में, तो वो हम लोग यूज करके ये एक अच्छा पेंटिंग बन सकता है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये रेफरेंस लिया है. Okay. Friends, I've been associated with Manjri More ma'am since I think almost 10 years, more than 10 years. 10. And in fact, my first interaction with her was also to learn soft pastels. I used to go to her studio and learn portraits in soft pastels. This was way back, I think, 15 or something. Yeah. 2015 It's or maybe literally 10 yeah, more than 10 years back. So I've been in great awe for her work, and I'm sure you all are going to enjoy also. So it's time now, it's 4, and just give us a second. We will do our setup, and you can ask questions in between, so that even while she is working, whatever doubts you have or you need any kind of clarification, she will be most happy to even interact with you and solve your queries. So just give us a second, we'll just have our setup ready. I hope it's clearly visible to everybody. Is it okay? Yeah, and please respond so that we know whether the vision is clear or if their audio is clear or not. Hi Kavita. Kavita is saying hi to you, Manjri ma'am. Hi. Hi, Kavita. So yeah, Done? now I think the setup is fine. Okay. So We can start. I have already shared the reference photo which she is going to give demo of on the group. So those who joined in just now, you can also have a look at the reference which she is giving demo.
Normally, I like to paint for myself. That's why my sometimes my the way of painting is something different than a typical हम लोग जो करते हैं ना ट्रेडिशनल वे Yeah. तो थोड़ा अलग रहता है कभी कभी, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने वाला रहता है, तो मे बी आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो चलेगा, लगेगा तो भी. Actually, the whole idea of doing a demo is to identify and see your way, your approach to things, correct? Yeah. So I'm sure my audience is going to love learning that from you. Okay. हर एक का एक इंडिविजुअल अप्रोच होता है. सब्जेक्ट्स में भी सेम. ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिशन वी ऑब्जर्व दैट सेम सब्जेक्ट को हर आर्टिस्ट एक अलग तरीके से अप्रोच करता है, एंड दैट्स हाउ द एंड रिजल्ट इज ऑल्सो सो डिफरेंट. Have you seen the entries of the people? What artworks they've been creating over the last few days? I've seen some landscapes and other things. Okay. People are doing good. Actually, I am very happy that ये जो competition है, तो इसका जो main ये है ना कि you make people paint. यानी लोगों को बहुत बार करना होता है लेकिन रेफरेंस नहीं रहता. Correct. तो ये जो आपने किया है ना, तो ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि एवरीबडी, और ऐसे ये किसी को वैसे दिखाने, मैंने ठीक है ये कंपटीशन है, तो ये भी लोगों को पता चलता है कि हम इसमें कहाँ पे हैं, और प्लस रेफरेंस भी इतने विविड, यानी बहुत अलग अलग रेफरेंसेस है आपके, तो यानी पूरे भारत के बाहर के भी, यानी जिसको जिस टाइप का काम करना है उस टाइप का रेफरेंस है, तो पीपल आर एंजॉयिंग दिस. And I think another observation which I personally feel is like ये 30 days continuously काम करे, तो wherever whichever stage we are, at the end of it we feel we have elevated a little. Yeah. So it really helps that way. So irrespective whether it's a student or a professional artist or somebody who is just pursuing it as a hobby, everybody seems to be, going a notch higher than what they were. Yeah. There is Neelam Agarwal. She's asking which paper you're using. This is Art Essential का pastel paper. Pastel Toned, paper. हाँ. Okay. It's a grey toned paper. So this has a mild texture to it. Yeah. थोड़ा बहुत टेक्सचर है इसमें. I suppose generally for soft pastels anyways we prefer some amount of grains in the paper. Yeah, actually if it is not there, then I use pastel ground for it, and Okay. I make वो करने लायक मैं बना देती हूँ तो इसको. Okay. Yeah, we get the gesso kind of thing even for preparing a pastel paper, correct? Yeah. Susant, you are asking me about watercolor papers. I think we will answer that when somebody is giving a demo for watercolors. Currently, since we are having a demo for soft pastels, I think we should stick to asking questions relating to this medium.
ये पेस्टल का इट्स लाइक ऑयल कलर का जो रहता है, हाँ, कि यू कैन चेंज एनी टाइम. Okay. Whatever is you have done is not fixed always. So, आप कभी भी उसको चेंज भी कर सकते हो. तो ये इसका एडवांटेज रहता है. Mm-hmm. So currently what you're doing right now is like in a general way blocking in colors, basic colors? Yeah, basic colors. And while doing that I'm thinking कि वो उसका ये कैसे होगा, कंपोजिशन कैसे होगा वगैरह, ऐसा थोड़ा सोच रही हूँ मैं करते करते. And I'm observing that your pressure is also very light. Very light. And I'm going to wipe out this. Okay. It won't be my this thing. This is just only for my idea. ये कैसे हो रहा है. फिर मैं इसको अभी टिश्यू पेपर से मैं वाइप करके पूरा, लाइक वाटर कलर में हम लोग जैसे फर्स्ट वॉश देते हैं ना, तो yeah. सब एक के अंदर से दूसरे में चला जाता है. Correct. तो आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ इफेक्ट हियर. Okay. कोई ऐसे स्पेसिफिक ये नहीं है. So there is Neha here. She's asking, you have 2 set of soft pastels here. So what are they like? Any particular category or type of? These are artist quality pastel color. The one is camel का I'm using. Another set is gallery का है, मंगो का. और एक जो है ये प्रिज्मा कलर का है. So all are soft pastels. All are, None are semi-soft or hard or anything. All are soft pastels I'm Okay. using just now. इसमें जो धीरे धीरे करके हम लोग फाइनल की तरफ जाते तो वो मुझे अच्छा लगता है. These are some in between shades. Those are not available in camel or Correct. तो बीच वाले जो ऐसे कुछ कूल शेड्स है, उसमें जो लाइट टोन चाहिए. Correct. तो वो हम इसमें से नहीं, तो इसके लिए मैं दूसरी ब्रांड से. यूज कर रही हूँ. Okay. वरना ये कैमल के इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है. ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं होता ऐसे. I think this is a basic 36 color set, correct? Yeah. So basic. a lot of in between shades need to be mixed and created. Yeah. Normally, of course, for this demo, this camel का जो है ना, ये we can just break it and use it. Like not camel, कि कौन सा भी हम लोग ये करके जो width का हमें ये चाहिए पेस्टल या स्ट्रोक देना है, वो हम दे सकते हैं इसमें से. Anil Sharma from Varanasi is saying namaste. Hi, hello, sorry. Hi. How do you preserve soft pastel artworks? One person is asking that. I just put the paper on it. A butter paper? Not exactly butter paper, rough tracing paper I put. Okay, tracing paper. I think some use fixative, but I feel it वो जो textures होते हैं वो थोड़ा flatten out हो जाता है once you spray. Actually what happens मैं जो ground यूज करती हूँ या पेस्टल पेपर जब यूज करते हैं ना, इट हैज टेक्सचर. तो एक लेयर के बाद उसके ऊपर लेयर वो ले सकता है इजीली. तो
उसमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. Mm-hmm. Fixative is something which some people even use in between layers, correct? Yeah, Like yeah. to make it more receptive, as you said just now. But other than that, if you do not want the undertone to get mixed up with the top, what are the reasons? Why would you use it in between? क्या होता है कि जब भी हम लोग अभी अंडरटोन अभी दिस इज ऑलरेडी प्री कलर्ड पेपर ये तो पहले से ही टोन है, लेकिन जब हम लोग कोई टोन वाला नहीं रहता पेपर, हाँ वाइट पे अगर काम करते हैं, नॉर्मली व्हाट हैपेंस पीपल यूज एक्रेलिक ऑल्सो एज अ बेस, एक्रेलिक के ऊपर भी काम करते हैं. तो जब भी व्हाइट पेपर के ऊपर काम करते हैं कोई लेयर देते हैं और फिर वो मिक्स ना हो, इसलिए कभी कभार देना पड़ता है ना. ऐसे नहीं, इफ यू आर दिस इज इनफ, यानी आप अगर बहुत डिटेल काम कर रहे हो, बहुत बड़ा पेंटिंग और बहुत डिटेल काम कर रहे हो, तो मैं यूज करती हूँ बीच बीच में. और जो काम अगर एक दिन से भी ज्यादा हो तो क्या होता है कि वो बाद में थोड़ा ये होने की चांसेस रहते हैं ना, तो उस वक्त लगता है वो, उस वक्त यानी डैमेज होने की ये रहता है ना, दूसरे दिन अगर काम करे तो उस वक्त मैं यूज करती हूँ. यानी एक दिन का काम होने के बाद उसको मैं फिक्स करके रखती हूँ. Okay. But is it your preference to work on large size works, or you एक्चुअली you prefer something that gets done within a day? बोथ वेज, यानी स्केच जैसे ये करने के लिए या मेरा पेंटिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस इज माय पेस्टल ओनली, बट रखने के लिए उतनी जगह नहीं रहती है ना, रह भी सकते, लेकिन कभी कभार वो बहुत डैमेज भी हो सकता है ना, तो इसलिए कभी मैं भूल गई यार आपका क्वेश्चन, मेरा ध्यान. No, I was just asking, what is your personal preference? Do you prefer large size works, or something that gets done in a day? या आई लव बोथ, यानी बड़े भी अच्छे लगते हैं और ये भी अच्छा लगता है मुझे काम करने में. No, but the big size ones, हाँ, for how many days you would have continued doing one particular work? यानी जैसे जो काम हमने हाथ में लिया है उस तरह से रहता है ना वो, यानी वो बड़ा यानी एकदम डिटेल वर्क अगर भी करना हो ना तो भी वो अच्छा लगता है ना. पेस्टल का बड़ा नहीं, फुल साइज से ज्यादा तो नहीं होता है, फुल पेपर का जितना साइज रहता है उतना ही, उससे ज्यादा तो नहीं होता मेरे से. Okay. You prefer blending with your finger? I'm just watching you. So, some people use stumps, paper stumps, and या इवन आई यूज पेपर स्टम्प ऑल्सो, बट अभी यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ, अपने हाथ का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं. that's a beautiful blue, and the stroke Yeah, makes so much of difference.
सच अ लवली ब्लू. वो ब्लू देखने के बाद ही मुझे वो रेफरेंस अच्छा लगा था एक्चुअली. वो वॉल थी ना. Yeah, it was my last day in Prayagraj, and I had just gone to the ghat to pick up some Ganga Jal. हाँ. And then I saw this little boy sitting and सबको वो तिलक कर रहा था बैठ के. अच्छा. And he was so cute. एक्चुअली उसका क्यूटनेस देख के उसको करने का मन कर रहा था. And like he is, जो भी आ रहे थे उसके पास तिलक करने को, सब उससे बुजुर्ग और ये बैठा बैठा सबको तिलक किए जा रहा था. हाँ. So then I just even I went to him and then I asked him, after doing the tilak, I asked him, can I take your pictures? So he said yes. So then like he was just, I don't know, I found him really cute. And you know, hum Pandit ji, sadhu and all that, you think of somebody elderly. ये एक बटुक था उधर. It's like हमारे में you know, and plus उसका मुंडन किया हुआ था, तो वो थ्रेड सेरेमनी के टाइम पे जो बटुक रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ. I somehow felt he looked like that, somebody just ready for that, you know, हाँ. initiation into you know, for studies and for spiritual study. And एक जो innocence थी उसके फेस पे, I think it just caught me also a lot. वरना बच्चे तो घाट पे बहुत सारे थे उधर, हाँ. बट किसी किसी के फेसेस वो शैतानी लगते हैं. He was, you know, very innocent and very nice. सौम्य था उसका फेस. हाँ. And the yellow and orange against the blue wall, everything Yeah. was complementing, and the light was also very right. अगर आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ फिक्स ये नहीं कर रही हूँ, बस स्ट्रोक्स दे दे के थोड़ा बहुत वो जो स्ट्रक्चर है उसके नजदीक जाने की कोशिश कर रही हूँ. इस तरह का काम मुझे खुद को पसंद है. अभी भी मेरा प्रेशर बहुत कम है. नॉर्मली पेस्टल का उपयोग जो है ना, वो मुझे पेस्टल जैसे ही अगर दिखे, मैंने ऑयल पेंट जैसे ना दिखे तो मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों. करेक्ट. वो मीडियम की जो खासियत है वो अगर उभर के आ सके तो ज्यादा अच्छा लगता है. And what about pastel pencils? Do you prefer to use them also? I never use them. अगर पेस्टल पेंसिल का पेंटिंग करना हो ना तो मैं पेस्टल पेंटिंग मैंने उसी का मैं ये करती हूँ, क्योंकि वो हार्ड रहता है.
Okay. पेस्टल पेंसिल्स जो रहते हैं ना, ये सॉफ्ट पेस्टल से हार्ड रहते हैं, Mm-hmm. तो अगर आप मैं इसमें अगर उसका इस्तेमाल करूँ तो वो अच्छा नहीं। मैंने ये जो पाउडर फॉर या ये रहता है ना, वो थोड़ा The grainy effect gets reduced, you हाँ say. हाँ। अभी अगर आप देख रहे तो ये उसका इफेक्ट जो है वो आना शुरू हुआ है। Hmm. ओके, दिस इज माय सेकंड ये एप्लीकेशन। और अगर मैं फिक्सेटिव यूज करती अगर, Hmm. तो मैं ये स्टेज पे फिक्सेटिव यूज करती। इसके बाद में ये मेरा फिक्स हो गया, अभी इसके बाद में का Okay. मैं कर लेती शायद ऐसे। यानी जो लोग करते हैं उनके लिए। Mm-hmm. दिस For those who joined in late, हाँ I just want to add again that she has been using Art Essentials soft pastel paper, which is grey toned. You were saying something? हाँ, भूल गई मैं काम करते करते। वैसे नॉर्मली हम लोग काम करते वक्त उतना नहीं बोलते ना, Correct. थोड़ा True. बहुत बोलते हैं We don't इसलिए। talk much. I mean, अरे we आप get बोल सकते हो, ऐसे engrossed. नहीं। हाँ We get engrossed, yeah. During our Friday portrait session, we used to take the tea break. हाँ, एवरी 20 मिनट्स अभी लाइव मॉडल रहता है तो हम लोग हाँ। ब्रेक लेते हैं ना। Correct. We have हम to लोग give को a break to the actually- model also, yeah. हाँ, तो आदत है हमें ब्रेक की बीच बीच में, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, बीच बीच में ब्रेक लेके भी बात कर सकते हैं। Here there is a person, Nidhi Patel. She is हाँ। asking, हाँ, ma'am, how do you decide where to put hard and soft edges? इफ आपने अगर रेफरेंस देख लिया हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो बैकग्राउंड है इसका रिफ्लेक्शन ये सिर के यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप देखो तो ये जो बैकग्राउंड का थोड़ा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट एजेस रखे हैं। और यहाँ पे भी आप देखो शैडो में तो ये भी थोड़ा सॉफ्ट है। और ये वैसे ही बैकग्राउंड में जो है ना, तो वहाँ पे ऐसे बहुत हार्श तो कुछ है नहीं। यहाँ पे मोस्टली यानी जहाँ पे फीचर्स है, ये जो शैडो है अभी, दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एरिया, लाइक जहाँ पे उसके फेस के ये यहाँ पे शार्पनेस रेफरेंस में है, लेकिन यहाँ का शार्पनेस फेस के इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए मैं अभी करते वक्त इसको मैं करूंगी, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दूंगी। Yeah, so you in a way even create your focal point by adding हाँ। hard edges there. हाँ हाँ,
Okay. Ajay Patil is asking, was there any reason why you chose to put the subject right in the center of the paper or not, like as a composition? एक्चुअली यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसे है कि कैमरा में जितना आता है वहाँ पे मैंने वो लिया है. ये है, अगर मेरा खुद का ये होता तो मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह ये करके थोड़ा स्लाइटली मैंने ये कर लिया होता और डिफरेंट जगह पे ले लिया होता. लेकिन अभी के लिए जो है ना वो यहाँ पे जो कैमरा लगा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कर रहे हैं हम लोग कंपोजिशन. Yeah, and actually even she's kept it little lower because she's sitting and working so that the camera, we are not seeing her back, rather we are seeing only the artwork. So we kind of adjusted the setup for that reason. The priority here was just the demo which is visible clearly, nothing else. तो इसलिए अगर आपको इसमें थोड़ा कंपोजिशन का ये लग रहा होगा तो उसकी वजह खाली यही है और कुछ नहीं. अभी ये वाला जो टेक्सचर है ना मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, ये पेस्टल का पेपर का, और प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया है अभी तो उसका जो यानी सिर के ऊपर जिस तरह से बाल है उसके यानी मुंडन किया हुआ है इसका, तो वो टेक्सचर इसको सूट कर रहा है. तो मैं उसको ये नहीं कर रही हूँ, डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. Okay. क्योंकि बिना कुछ ज्यादा कोशिश से मुझे ये मिल रहा है. रिजल्ट आ गया. Yeah. या नॉर्मली ये कभी ऐसे डिसाइडेड नहीं रहता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन बहुत बार ऐसे अपने आप इस तरह से चीजें हो जाती है, मिल जाती है. So in a way it is like a constant conversation with your paper or canvas which normally artists practice, correct? We are constantly observing and watching how it is responding to the interaction, how it is happening. हाँ. And I think कभी-कभी unplanned effects भी आ जाते जो बहुत appealing होते हैं. हाँ, यानी वहाँ पे रुकना चाहिए. Yeah, अगर so ऐसे मिल गया इफेक्ट correct. तो जानबूझ के वहाँ पे कुछ ज्यादा काम करके उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. Correct. अभी ये मैं फ्लैट यूज कर रही हूँ और थोड़ा क्या बोलते हैं वो स्ट्रक्चर के बाहर भी शायद जा रहा है, लेकिन ये जो प्रेशर और ये इसकी वजह से मुझे जो इफेक्ट मिल रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ. यानी अगर मैं कोई दूसरा टेक्निक यूज करती और नॉर्मली पेस्टल का हम लोग करते हैं तो जैसे देगास की स्टाइल है ना, नॉर्मली मैं जब भी लाइव पोर्ट्रेट और ये करती हूँ तो मैं उस तरह से स्ट्रोक यानी ऐसे यहाँ पे दिखाती हूँ. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये टाइप के स्ट्रोक से मैं काम करती हूँ. तो मुझे वो वैसे काम करना भी पसंद है, लेकिन इस तरह का जो काम होता है अभी जो मैं कर रही हूँ उसमें क्या होता है जो स्ट्रोक जो आता है और उसका जो शेप रहता है वहां पे पेपर पे, तो अगर वो वैसा भी रहे तो भी चल सकता है. अभी ये जो लाइट्स है ये जो अभी मैं यूज कर रही हूँ तो ये दूसरे
इसमें है, क्योंकि ये वाले शेड्स अपने इसमें है नहीं, तो Like I am seeing you have 3 brands of soft pastels here with you, हाँ and each one's thickness हाँ is also different. या Leave alone the pigment concentration and pigment range is also different, but even the size of each pastel, though all what I'm seeing is all are square pastels, none of them Yeah. are round, या but even the thickness is different. So does that at any point of time become essential for you to choose which one to pick up? नहीं, अभी तो मैं कलर के हिसाब से ये कर रही हूँ। अभी ये जो कैमल वाला है ये थिकर है, लेकिन फिर भी मैं इसके एजेस यूज कर रही हूँ। Correct. ये वाला है, ये मंगियो का है, तो ये भी स्क्वायर है, उससे कम है, लेकिन इसका भी मैं एज यूज कर रही हूँ। और ये वाला जो है ये Prisma. प्रिज्मा कलर का है, नो पेस्टल है, लेकिन ये जो है ये बहुत कंपैरेटिवली है, लेकिन पतला ये है। हाँ, इसके स्पेसिफिकेशन में इसको हार्ड बोला है, लेकिन इसका सॉफ्टनेस जो है ना ये कैमल के इसको थोड़ा मैच कर रहा है, तो मुझे ये उसके लिए ये काम कर सकता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने वो सभी एक जैसे ही ये कर रही हूँ मैं उसको। And actually, even I have noticed that different brands they feel different when actually on paper. While Yeah, applying yeah. itself, our artist realizes कि किसी किसी को हमें प्रेशर देना पड़ता है. They are not that soft. किसी किसी का it just needs a gentle touch. हल्का सा भी थोड़ा प्रेशर बढ़ गया तो lot of it keeps crumbling down. हाँ, वो एक्चुअली वो हर एक पेस्टल जो इससे बनता है ना पिगमेंट से, तो वो पिगमेंट का कंपोजिशन रहता है, और हर एक पिगमेंट, अभी रेड वगैरह जो पिगमेंट्स है ना वो थोड़े ये करने में डिफिकल्ट है बनाने में, तो रेड के लिए थोड़ा अलग ये होता है समटाइम्स, यानी वो पिगमेंट और उसका जो बाइंडर रहता है, तो उसके हिसाब से ये चीजें रहती है। ये देखो इतना What do- छोटा, हाँ छोटा सा इसका काम देखो कितना अच्छा है। Correct. आप क्या बोल रहे थे? What do you say is your style of working? Like, is it you go into a lot of realism or very impressionistic work? एक्चुअली मैं ज्यादा रियलिज्म की तरफ जाती हूँ, Okay. क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो अननोइंगली मेरे से हो जाता है। Okay. मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं, लेकिन That's your style. नॉट एग्जैक्टली माई स्टाइल ऑल्सो। कभी कभार हो जाता है कि मैं बहुत रियलिस्टिक काम करती हूँ, यानी जितना अगर मेरे को टाइम ज्यादा मिले उतना मैं रियलिस्टिक पे ज्यादा उसकी तरफ चली जाती हूँ। Focus उस पे रहता है. हाँ, Like, does it make you feel that the work is incomplete till you've not achieved certain amount of realism? हाँ वैसे होता है। कभी कभार क्या होता है कि उसका जो जस्ट यानी जैसे हम लोग डेमो में ये करते हैं, तो वो उतने टाइम में वो इफेक्ट मिल जाता है, तो बस वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं ना डेमो के लिए। जैसे फुल
ये काम तो नहीं होता, लेकिन खुद के लिए जब पेंटिंग करते हैं तब ऐसे मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि अरे वो यानी अगर कोई ये बैठे हो, मॉडल बैठा हो या कुछ ये करे, तो भगवान ने हर चीज को इतना सुंदर बनाया और इतना ये बनाया, और अगर मैं वो नहीं उतार पा रही हूँ तो मैं हमेशा ये करती हूँ कि अरे क्या हो रहा है, ये यानी इतना अच्छा नेचर है, इतना ये है, और हमसे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, हम उसके आसपास तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो ये मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। नॉट डिस्टर्ब करता है, ऐसे लगता है कि ये नेचर कितना महान है और हम कितने छोटे हैं, तो इसलिए मैं वो सोचते 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 हमेशा उसमें ही रह जाती हूँ। फिर ये इम्प्रेशनिज्म यानी नॉट इम्प्रेशनिज्म, लेकिन उसका जो इफेक्ट मिलना है बस उस तरह का काम भी हो सकता है। Like we had pastel portrait demos in the past also. Last year also we had Parag Borse giving us a demo. And there is always a limitation of going live. We have a time schedule within which we try to finish. But some artists, like even Parag said कि okay, we'll stop at this stage because हमारा time हो गया. But then after I left, he did a little bit of work and then he shared the final work with me, image. So sometimes during a demo or a live session like this, artist is not satisfied कि जितना वो चाहते थे उतना काम कर लिया. करेक्ट, लाइक यू वांट कि अपने सेटिस्फैक्शन के लेवल का काम करना हो तो थोड़ा और टाइम चाहिए. सो यू टेंड टू वर्क लिटिल मोर. हाँ, लेकिन एक स्टेज ऐसे आती है ना कि नहीं अभी इसके लिए यहाँ पे रुकना है, तो वहाँ पे तो वो टाइप का काम रहता है ना, तो उसमें अगर हम मैं पूरा नहीं करूंगी तो ठीक है, वो स्टेज का काम उतना ही हो गया. तो और जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं अगर ये करूँ तो इसको अगर मैं करना चाहती ऐसे फुल इसमें, तो मैं अलग तरीके से फिर चालू करूंगी. ये टाइप से मैं हर एक पैच को मैं स्मूथ करके वो कंप्लीट करूंगी. यानी ये वाला सपोज है तो. How do you store your soft pastels? I have seen you've been working in soft pastels for such a long time. So, you just put that tracing paper in between and store it, or you? Yeah, in drawers and in वो ग्रे कलर का केस रहता है ना, प्लास्टिक का, उसमें रख देती हूँ. But you don't fear it getting damaged? थोड़ा एक्चुअली फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी हो तो अगर ये किया ना उसमें जो ग्राउंड वगैरह मैं बना लेती हूँ ना, और ग्राउंड इन्हें और अगर काम करती हूँ ना तो वो बहुत डीप अंदर चला जाता है पेस्टल, फिर वो निकलता नहीं है. यानी उतना डैमेज नहीं होता जितना यानी ऊपर से थोड़ा पाउडर ये हुआ, लेकिन वो अंदर तक चला जाता है, तो कोई वैसे नहीं प्रॉब्लम आती. Like I know some artists who say that they prefer to immediately mount it and frame it or whatever. They don't even leave it ऐसे. Yeah, because they feel the only best way of storing is उसको सीधा फ्रेम ही कर डालो. नहीं, ये है, लेकिन एक बात मैं बोलूँ आपको, वो जिनको पॉसिबल है वो करते हैं ना, लेकिन मेरे यहाँ उतनी जगह नहीं है रे. जितना काम मैं करना चाहती हूँ उतना मैं अगर प्रिजर्व करूँ तो मुझे घर के बाहर रहना पड़ेगा.
No, but that's true. You can't even frame everything, correct? अरे It's नहीं, practical थोड़ा भी issues अगर होते कुछ हैं. खराब हो जाता है ना, और ये तो मैं पूरा उसको रद्दी में ही डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये नहीं होने वाला है, तो वो थोड़ा कम बचता है, फिर उसको मैं जैसे मैंने बोला वैसे मैं रख सकती हूँ उसे. बीच में मैंने ऐसे ही ये किया था FB पे कि मैं सब ये निकाल रही हूँ पेस्टल का रद्दी, तो किसी ने लेके लिया था मेरे से. Hmm. Neelam Joshi is asking, please explain about the ground. You saying that you prepare the ground, so she wants to know some more details about it. हाँ, एक्चुअली मेरे पास गोल्डन कंपनी का पेस्टल का रेडी जैसो मिलता है. उसको पेस्टल का ग्राउंड ही लिखा है वो इसके ऊपर. तो वो जो रहता है ना, तो वो पानी में मिक्स करके वो मैं पेपर पे या माउंट बोर्ड पे, यानी जिस सरफेस पे मैं काम करना चाहती हूँ, अगर कभी कैनवस पे किया तो भी वो वाला उसमें जो सैंड पेपर रहता है ना, उसका टेक्सचर रहता है थोड़ा बहुत. यानी उस सैंड पेपर 0 नंबर का सैंड पेपर जिस तरह से होता है ना, उस तरह का वो टेक्सचर आता है उसमें. फिर वो हम उसमें काम अगर आपने कभी किया हो सैंड पेपर पे काम, तो आपको पता चलेगा कि वो हाँ यानी वो हिलता नहीं है. अगर आपने कहीं पे भी ये किया तो ज्यादा डस्ट नहीं पड़ता, वो जो ऊपर का डस्ट है वही पड़ता है. बाकी उसमें पेस्टल बहुत खर्चा होता है, यानी बहुत अंदर तक वो चला जाता है ना, तो वो पेस्टल अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है इसमें. Yeah, like I've used that on a sandpaper. I think बाकी ये पेस्टल पेपर्स पे जितना टूथ रहता है उसमें ज्यादा होने के कारण, हाँ, like you are just using up your pastels also much more. या लेकिन ये जो है ना ग्राउंड जो रहता है ना, वो यानी एक्चुअल सैंड पेपर से कम ये रहता है उसका. फ्रिक्शन जो रहता है वो थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी वो उसमें ये रहता है. अभी शायद आप सब लोगों को तो पता नहीं, लेकिन ये हीना अगर हाथ लगा के देखना चाहते तो एक सरफेस बना के Yeah, I can feel that little हाँ, grainy kind. हाँ, but it is not that सैंड पेपर हाँ, इतना भी नहीं हाँ. है, लेकिन इसमें मैं अगर काम करूँ तो वो सॉरी गाइज आप नहीं देख सके, No, खाली it was visible on the camera, but of course what I can feel they can't feel, correct? हाँ. अभी देखो ये जो मेरा पहले वाले ये 2 लेयरिंग थे, तो वो उसमें मैंने फटाफट कर लिया. लेकिन अभी मैं अगर वही टेक्निक यूज करूँ और ये करूँ तो मुझे ऐसे चैन नहीं आता कि नहीं, मुझे अभी डिटेलिंग अच्छा करना चाहिए, ऐसे मुझे थोड़ा फील आने लगता है. So how much of your mind is at work when choosing colors, or you are just observing the reference and trying to pick up colors? I'm seeing tones because पेस्टल में टोन्स ज्यादा देखने पड़ते हैं. अगर बहुत ज्यादा डार्क हो और ये हो तो मैं ब्लू वगैरह इस्तेमाल करती हूँ. और जो ब्लू वहाँ पे नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड का जो ब्लू है ना, तो वो उसके साथ चला जाता है. So this comes with experience, correct? That you know कि I can replace it with a blue instead of whatever is the color to give you the required depth
in tones. हाँ, अगर आपको जो बेसिक कलर्स रहते हैं उसका अगर ये पता हो, और You mean the color wheel? कलर व्हील, उसके टोन के बारे में और इसके बारे में अगर आप कॉन्शियस हो तो आप यूज कर सकते हो। और ऐसे नहीं, अगर ये हम लोगों को दिख रहा है लेकिन हम दूसरे इसमें भी ये कर सकते हैं, दूसरे इसमें ने दूसरे कलर्स भी यूज कर सकते हैं, टोन खाली वही रख के। Like I have observed that you tend to use lot of violets and mauves and other colors also. Like your pastels are little more colorful, या lively. Whereas I have seen some people वो एकदम सिंगल मोनोक्रोमेटिक वाला फील भी उनका स्किन का आता है, whereas your skin colors are very lively. So it's basically you play around a lot with colors. एक्चुअली आई सी दोज कलर्स इन। और जैसे मैंने बोला कि हमें पेस्टल में वो एग्जैक्ट शेड तो मिलते नहीं है, लेकिन उसके आसपास के शेड्स तो हमेशा मिलते हैं। तो वो वैसे हो जाता है, यानी उसके नजदीक का करते करते वो कलरफुल ऐसे हो जाता है। और मोस्टली मैं रिस्ट्रिक्टेड कलर्स यूज करती हूँ, तो इसलिए भी वो एक ज्यादा कलर्स फिर उसमें हो जाते हैं। यानी इफ यू हैव लिमिटेड कलर्स, लिमिटेड रिसिंग, तो वो आपको वही करना पड़ता है। People are enjoying your demonstration. Thank you. Getting a lot of comments here. Friends, if you have any questions at this stage, please feel free. Do you want to take a break or something and just answer questions? Okay, okay. Or you want to just continue? नहीं, आई आंसर क्वेश्चंस व्हाइल डूइंग आल्सो। Okay. लेकिन बीच में मैं काम करते करते भूल जाती हूँ क्वेश्चन क्या है, तो Yeah, वो yeah. बस बोल देना। बस उतना ही, और कुछ नहीं। If you remember, the first pastel work of yours which I had bought was also of a monk. आई डोंट रिमेम्बर कौन सा था That वो। Buddhist monk kind of thing. Oh, He yeah, also red, was, red, हाँ, yeah. और वो The पीछे उसके correct. There was bamboo tree, foliage and all हाँ, that. bamboo tree था, yeah. तो वो भी ऐसे bald and ऐसा ही monk था. और फिर आज भी हम लोगों ने मंक ही किया है। हाँ. तो बोलने का था कुछ अलग कर लेते। No, that's okay. I'm enjoying watching this. Kamalpreet is asking, do you use canvas or paint paper with acrylic paint for soft pastels?
हाँ, कर सकते हैं। किया भी था मैंने कुछ ये पेस्टल के लिए पैन आर्ट का वाटर कलर का जो ये आता था ना, आता है यानी, वो यूज करके मैंने, यानी उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा ये लगाया था, क्योंकि मुझे वो पेस्टल का जिस तरह का इफेक्ट चाहिए था उसके लिए मुझे वो लगाना पड़ा। और मैंने कैनवास पे भी किए हैं ऐसे। So everything you prepare first with the gesso. मोस्टली अगर पेस्टल पेपर ना हो तो Like lot of people I've seen, they use even the watercolor paper. एक watercolor का ही wash दे देते हैं and then they start working on it with pastels. हाँ हाँ, वैसे भी कर लेते हैं। वो क्या होता है कि वो वाटर कलर का पेपर का क्या टेक्सचर है उसके ऊपर वो चीजें डिपेंड रहती हैं। और वैसे भी काम हो सकता है, पर उससे ज्यादा मुझे वो इसका टेक्सचर ज्यादा अच्छा लगता है। ये gesso का. हाँ, वो जो दैट डिपेंड्स ऑन वाटर कलर के पेपर का जो ये रहता है ना, कभी यानी कोल्ड प्रेस या नॉर्मली क्या होता है उस तरह के इसमें जब भी काम होता है ना, तो वो जो अगर मुझे ये एक्रिल करना है तो मेरा जो फर्स्ट काम था वो तो वाइट रहता है ना पेपर, तो जो काम था तो इसका जो मैंने पहले ये बनाया ना फर्स्ट इसमें थोड़ा इधर इधर ऐसे कलर्स बनाए थे, तो वाटर कलर में भी अगर मैं वो पेपर अगर यूज करती तो मैं वाटर कलर में वो वॉश दे के रखती। Okay. तो मेरा वो वाइटनेस चला जाता था और Correct. फिर इसके ऊपर काम आसान हो जाता है। We have artists from Hyderabad, Jammu, Bangalore, West Bengal. I mean, from across the country watching you right now. And like Sanjay Ashtaputre is there. Deva, she's from Jammu, she's watching. Javed Iqbal, he's from Sapor, that is even ahead of Srinagar, he's watching. And I mean, there are many artists from across the country watching your demo right now. Oh, thank you everyone. And hi. Sailesh Meshram is already appreciating. He's saying excellent demo. Thank you. There is Vidya Vivek. She is watching from Dublin. Hi Vidya. We know we are Facebook friends, I think. I think so. Hana Vidya? Suhani Jain from Nagpur. Hi Suhani. Sonali Bhavsar from Pune. Hi Sonali. She's from Pune, so do you know her? Ha, she is also Facebook friend. Okay. Vidya is saying yes, we are connected on Facebook. Vidya also does some good paintings. I've seen her. There is Sona Sharma. She's from Indonesia. She's watching from there. Oh, So we have audience from many places right now. Somebody already commented that he's looking very divine. अभी से दिख रहा है. Thank you. Actually, the reference is really good. This
blue color now, this connects with sky also, water also. So that color itself is really very good. So now you started blending the small areas with a stump, paper stump. या एक्चुअली अभी इसका ये तो बहुत थिक है और मुझे अभी जो उसके नाक का वो जो शेप बनाना है वो करेक्ट. उससे नहीं हो रहा है. मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए अभी मैं फिर इसको Kamalpreet is asking, why are you holding your hand with the other hand? Like, are you getting tired? Or what is it like? Oh my god. I had an accident and I can't मेरा हाथ ऐसे नहीं होता इसलिए मैंने पकड़ा. I hope you heard her. She said she's had an accident in the past, and because of that, she needs to hold her hand to keep it steady. यानी I can't see this hand I can, but I can't draw and paint. ये मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकती, तो इसलिए ये You need support. हाँ. I think in the self-portrait event, there was a self-portrait with your fractured hand. हाँ है ना वैसे भी. I have that image of yours with me. या और वो ये करके मेरे को किसने, अनिल नाइक सर ने या किसी ने पूछा था क्या हुआ. या कामत सर ने ही पूछा था शायद. I don't remember. Sharmila Kari, she's saying it's a wonderful experience to watch the subject come alive. It's breathtakingly beautiful. Thank you. इसका स्माइल इतना अच्छा है ना. I think Mona Lisa की स्माइल जैसे सटल है वो, हल्का सा स्माइल. जो एक मरून करके शेड है, पता नहीं वो कहाँ है. I have seen a lot of people keep their pastels in rice. हाँ, राइस में रखते हैं. हाँ. So, okay, for our audience, like, can you just say why would somebody do that? वो टूटे नहीं इसलिए रखते हैं. Okay. और राइस जो रहता है ना वो मॉइस्चर ये करता है, सोक करता है, तो उसके लिए भी रखते हैं. राइस में अगर आप उसको ये करके रखो ना तो वो राइस उसमें से मॉइस्चर ये कर लेता है, सोक कर लेता है. एंड पेस्टल्स थोड़े डस्टी भी कम हो जाते हैं, आई सपोज डस्ट भी ले लेता है ना. हाँ, एक दूसरे का पिगमेंट छू के भी वो थोड़ा कंटामिनेट हो जाते हैं. नॉर्मली इसके लिए ना ये हमेशा ऐसे अलग अलग ही
रखना पड़। तो अगर बॉक्स में रखे ना तो वो एक दूसरे को लग के खराब हो जाता है ना, तो अरे मैं कर रही थी, नाक में नीचे क्यों आई? Do you want to work silently for some time? Is the conversation disturbing you? नहीं, कोई बात नहीं, चलता। वैसे तो हमेशा अकेले ही काम करते हैं ना, ऐसे कोई बात नहीं। I would like to tell our audience about her level of preparedness for this demo. कि normally current जाता नहीं है, but in case the power supply goes, she also prepared one additional sketch for reference, so that in case power supply cut off हो जाए by any chance, she can refer that and continue with the demo. So that is her level of being prepared for this demo. नहीं, ये हमेशा ही होता है ना, जैसे मैंने घर में एक दो लोगों को भेज के रखा कि अगर मेरा कुछ हो गया मोबाइल का, इसका, तो क्योंकि ये सब कोरोना के टाइम पे सब इस तरह की चीजें होती थी, तो इसलिए प्रिपेयर रहने की आदत पड़ गई। You want to take a water break or something? ठीक है। Israt, the paper is of a brand called Art Essentials. It is a soft pastel paper of that brand, and it is in grey tone. ये अब आर्ट इसेंशियल, ये अपना मुंबई का आर्ट लॉन्च का प्रोडक्ट है। Okay. और वैसे भी ब्रस्टो का भी आता है। What about Kesson and all those अरे दैट papers? इज आल्सो वेरी गुड, पर वो Because I have थिकनेस में ना, personally used that. इवन आई यूज दोज। मुझे प्रॉब्लम क्या है ना, इन सब रेडीमेड पेपर्स में वो बहुत थिन रहते हैं, बहुत थिन रहते हैं। उसका जीएसएम देखो तो आप बहुत कम रहता है वो, तो What is the GSM of the current paper? थिकनेस आई डोंट नो, दिखा है वो, उसको देखना Even this पड़ेगा। doesn't seem 180 होगा या उससे? हाँ, ये बहुत थिन है, तो मुझे उसका ही थोड़ा, आई पर्सनली लाइक थिकर दिस थिंग, तो इसलिए मैं ग्राउंड वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए ये बनाती हूँ कि मुझे जो थिकनेस का पेपर चाहिए रहता है तो वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, एक बार आपने लगा दिया इसके ऊपर तो ज्यादा उसमें कुछ ये नहीं है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता बस इतना ही। What is personally your favorite subject to paint?
Actually, I love to paint everything. But whenever I paint portraits ना, तो मेरा पूरा टेंशन चला जाता है जिंदगी का. It's detoxing for you, correct? हाँ, इसलिए मैं You're so involved in doing. हाँ, I really enjoy that doing. तो ऐसे नहीं है कि बाकी भी बहुत चीजें कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग ये रहता है, मजा, यू कैन से. अभी ये जो बच्चा है ना, तो इसका जो ये है, उसका एज और नाजुक उस वक्त जो स्किन रहता है ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे जानबूझ के अभी मैं दूसरे इसमें से जो कलर यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कलर्स है वो अगर मैं बहुत हेवी यूज करूँ तो वो सॉफ्टनेस और ये वो एज का ये चला जाएगा, इसलिए मैं ये बहुत Yeah, his features are very. I think children that way are little dicey. Like you, if you don't do that softness well, you start giving them a adult look. हाँ, वो एज, तो वो supple feeling capture करना itself is a challenge. हाँ, actually painting sadhus is a very, you know, sadhu means दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, because you have to just do दाढ़ी of sadhu. The structure of दाढ़ी will tell you the story. Painting small children is a very difficult thing because उनका जो softness रहता है ना स्किन का, और ये not softness, structure wise, तो वो कैप्चर करते करते ही बहुत ये हो जाता है. For those who are not very familiar with Manjari More ma'am's routine practice and everything, like I will just like to add here that she was the one who started a Friday portrait group where artists from Pune used to gather and Not used to, we are still doing yeah, it. you still do it. In fact, they are celebrating the 10th year of Friday Portrait Group. And so models are called every Friday and it is a live session. So I have always been very surprised कि 10 साल तक every Friday, how did you manage to get models? Otherwise, it's such a challenging thing. Actually, it's not only me. Other means like-minded artists are also with me, and they also try to arrange them. So when it's a group, तो ये easy रहता है कि वो इकट्ठा करें, काम हम लोग एक साथ करें, तो वो possible होता है. अगर मैं अकेली ये होती तो ये थोड़ा possible नहीं रहता. इसमें खाली मेरा नहीं, हर एक का ये है, कोशिश है इसमें. Yeah, but when I also was part of the Friday Portrait Group, I used to see that you used to maintain a register. Yeah. And all the people who modeled, their contact number, and in fact एक पूरा calendar ready होता था कि कौन कब आएगा
और कौन मॉडल करेगा एंड हु इज गोइंग टू गेट पहले द पहले ना पहले तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चलने लगा अरे कुछ अच्छा बनता है तो लोग मैं आता हूँ ऐसे करने लगे। फिर कभी कभी ऐसे ये हो जाता है ना कि जो ग्रुप में चले मीन्स जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो भी सभी लोगों को जो मॉडल को हम लोग बिठाते हैं लाइव करने के लिए, तो उसको क्या तकलीफ होती है, कितना उसका भी टाइम स्पेंड होता है ना। हम लोग कोई मॉडल बैठता है तो ऐसे नहीं है ना कि खाली आर्टिस्ट काम करता है, तो मॉडल को खुद का टाइम भी निकालना पड़ता है। तो हमारे लिए कोई टाइम निकाल रहा है, कोई हमारे लिए बैठ रहा है, तो ये अनुभव ये करने के लिए हम लोग खुद भी बीच बीच में मॉडल करके बैठते हैं, ताकि ये हम लोगों को ये हो कि कोई अपने लिए करता है तो क्या असुविधा होती है या you can understand the model's point of view. हाँ। And I remember that very well because मैंने first time जब आपके लिए मॉडल किया था, it was a full day session. और साड़ी पहनी थी और वो भी साड़ी पहना के बिठाया था. So, believe me, after that I realized that हम लोग तो as an artist we are enjoying so much of freedom, but for a model to sit still for so many hours, I mean it's quite a difficult thing. इतना easy नहीं है. तो इसलिए हम फ्राइडे पोर्ट्रेट में जो लोग आना चाहते हैं उनको बोलते कि पहले आप मॉडल करके बैठो, करेक्ट, अब फिर ज्वाइन होना। आई थिंक आर्ट स्कूल्स में भी मॉडल नहीं मिलते हैं ना, तो मीन्स इतने फ्रीक्वेंटली नहीं, ऑफ कोर्स होता है, अरेंज करते हैं आजकल, लेकिन वो पहले पहले ऐसे ही रहता था कि अरे कोई नहीं है तो अपने में से ही कोई बैठ जाओ। तो करेक्ट, हम लोगों को तो आदत थी थोड़ी बहुत, लेकिन आजकल के जो नए लोग हैं तो उनको तो मिलते हैं मॉडल में, उनको नहीं रहती। एंड इफ यू आर सिटिंग लाइक जस्ट अ पोर्ट्रेट के लिए बैठ रहे हो तो बात अलग है, बट अगर फुल डे फुल फिगर वाला सेशन कुछ हो, and I remember couple of times it spilled over and we've done for 2 days also the same model. नहीं, अभी तो हम लोग ये बात करते हैं, अभी कॉलेज वगैरह में आर्ट स्कूल में जो मॉडल होते हैं ना, दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनको तो यही होता है प्रैक्टिस, उनको उसके पैसे मिलते हैं, करेक्ट, तो उनकी तो कोई ये नहीं, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग वो पता होना चाहिए कि हम लोग किसी का टाइम यूज कर रहे हैं, तो प्लस गिविंग देम द ब्रेक एट द राइट टाइम. हाँ, फिर उनको पोज भी उनके हिसाब से करना पड़ता है ना, कि उसका वो जो डमरू एंड त्रिशूल, इतना छोटा काम शायद ये वाले पेस्टल में नहीं होगा, बट उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। So when I visited this little boy, he was sitting with chandan and all kinds of stamps like damru hai, om namah shivay hai, jai shri ram hai, like you know. So hamare upar they leave it on us. You select which one you wanted stamped on your forehead ऐसे. तो उसका ये त्रिशूल और डमरू इतना मस्त लग रहा था कि आई टोल्ड हिम यू डू दैट फॉर मी.
there have been many artists who visited Prayagraj, and there were some who painted there on location also. इतनी भीड़ में भी they have found place to sit and paint. That's amazing. अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछूं क्या? मुझे? हाँ, Yeah, why not? आप ये जो ये करते हो, फोटोग्राफ वगैरह निकालते हो, और आपने ये पेज चालू किया है पेंटिंग रेफरेंसेस, ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आप ऐसे कर रहे हो? नहीं, मैं आई हैव बीन क्लिकिंग फोटोग्राफ्स फॉर मेनी इयर्स नाउ, नॉन डिजिटल टाइम से. हाँ, तब तो हम वो दूसरा वाला कैमरा रील वाला होता था, हाँ, तो आई यूज टू क्लिक फॉर मी टू पेंट बेसिकली. हाँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये कैप्चर करने का इतना अच्छा लगने लगा कि इट स्टार्टेड बिकमिंग, द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स वर फार मोर देन हाउ मच आई कुड पेंट. हाँ, And actually, by then, my personal painting was different. मैं conceptual work वगैरह कर रही थी, तो ये इतने सारे मेरे पास photographs हुए थे इकट्ठा, which I had collected that I will paint, basically. But Because normally I have my seen- painting language, my style was very different. So I realized कि मैं ये paint करूंगी नहीं. इतने सारे references जो है मेरे पास, I might never land up doing, because मैं तो पूरा अलग ही किस्म का काम कर रही हूँ. हाँ, चलो अभी ये इवेंट के दरमियान मैं लोगों के साथ साथ थोड़ा ये बहुत काम करती हूँ, बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ आर्ट विच आई डू. हाँ, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग इट्स नॉट फेयर कि इतने सारे बढ़िया रेफरेंसेस होने के बावजूद इट इज नॉट of use to anybody. So I just started this page and I decided to share with people so that at least somebody is using it. एक्चुअली वही होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्टिस्ट लोग अपना जो रेफरेंस रहता है वो कहाँ पे शेयर नहीं करते. और अभी आपने बोला तो इसके लिए मैंने देखा इतने बहुत अच्छे, यानी हाँ कि अब मैं ये पेंट करूँ, मैं वो पेंट करूँ. एक्चुअली मेरा भी ऐसे नहीं है कि मैं भी नॉर्मली कुछ सब्जेक्ट लेके पेंटिंग करती हूँ, तो यानी फोटोग्राफ से और ये से मेरे से भी बहुत कम काम होता है. तो लेकिन ये करने के बाद यानी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी वजह से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं. ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये लोग. And no, for me also it is a very satisfying क्योंकि feeling. जहाँ पे आप जाते हो वहाँ के फोटोग्राफ है, ऐसे नहीं है कि बस खाली थोड़ा ही चला ही. बहुत अच्छा चल रहा है. मुझे अच्छा लगता था to capture all those moments वगैरह, but then personally my mind works that way only कि कोई चीज पेंटिंग के लिए कैसी रहेगी उस हिसाब से आई क्लिक. यस, नहीं क्योंकि बाकी वही तो है ना कि बाकी लोगों के जो फोटोग्राफ्स, अगर फोटोग्राफ पे काम करना हो तो वो वैसे नहीं होते. आपके जो फोटोग्राफ्स रहते हैं ना उसमें से पेंटिंग हो सकता है. समझ गया. यानी बाकी दूसरे लोगों के से वो होगा इसकी ये नहीं रहती. वो अपने हिसाब से फोटोग्राफी के हिसाब से फोटो निकालते हैं ना. So anyways, अभी तो ऐसा है कि like sometimes मैं देखती हूँ the amazing work which people do using these references. तो like I share it with my husband and my family and all, and I tell कि देखो, see how much work can be done from a simple photograph, like. And it's a very satisfying feeling for me also. वो सब
इतने बढ़िया आर्टवर्क्स देख के. Just, I think the day before the event was to take off, there were some technical issues happening on the page. So मुझे लगा अरे बाप रे ये मेरा पेज हैक हो गया तो it will be such a sad thing. हाँ कुछ चल रहा था देखा. Yeah. Because I was getting all kinds of messages. I was not able to access my own photographs. मुझे कुछ edits करना हो, कुछ भी करना हो तो वो मुझे allow नहीं कर रहा था. So there was some issue the previous day, but luckily वो सब resolve हो गया and things were normal. But एक मिनट के लिए तो मुझे भी ऐसे हो गया कि अरे इतने सारे फोटोग्राफ्स मेरा ये पेज कुछ इशू हो गया, हैक हो गया तो. But it's okay, I have photographs, I can repost it. That's not an issue. But still ये नहीं, इट हैज सम प्रॉपर क्या बोलते हैं अपने अलग अलग एल्बम्स बनाए हैं. तो अच्छा लगता है ना, एकदम चाहिए कुछ रेफरेंस के लिए तो झट से मिलता है उसमें से. तो इसके लिए आपको पहले क्या थैंक यू बोलना चाहिए. मैं तो यहाँ पूना में बैठ के सब घूम के आई. अच्छा. And I am a travel freak, okay? I have to say that. बचपन से मैं बहुत ट्रैवल करती थी, तो it is like at least वो ट्रैवल कुछ काम आ रहा है. हाँ. Neelam Joshi is saying, so amazing. It's slowly photo turning in life. थैंक यू नीलम जी. When you said, can I ask you a question? I was wondering कि अभी आप मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे. But best is, be it my driver or my family people, सब लोगों को पता है अभी they are also kind of getting रेसन का आ गया, you know, to click. So he was slow the car down. आपने ये देखने का ये दिया है, नजरिया दिया है. कविता सालुंके इज राइटिंग, हिना हम लोग नेपाल में थे तभी आपने ये बताया था, आज ये कितनी बड़ी बात होती हो गई. थैंक यू सो मच हिना. अरे एंड एक मिनट फॉर योर अमेजिंग फोटोज. मोस्ट वेलकम कविता. यू नो you have also been witness to me going around and clicking. तो you might have seen, शायद पेंटिंग से भी ज्यादा मैं फोटोग्राफी कर लेती हूँ. It's not only photography, it's sharing with everybody is also a great thing, according to me. एंड सरप्राइजिंगली जो भी बोलो मुझे अच्छे लोग मिल जाते व्हेन आई ट्रैवल ऑल्सो. तो लाइक every time I found somebody or the other who's
like if I'm in a new place, मैं ज्यादा जानती नहीं हूँ, I find people who guide me कि इधर जाइए या उधर जाइए, और there are people who take me also to places where you know मैं अच्छे photographs click कर सकती हूँ. Like interacting with the locals and getting to know कि उनके लिए कौन कौन सी जगह important है within their city, and getting to know कि उनका routine lifestyle कैसा है. Sometimes capturing all those things adds so much of stories to these pictures, correct? हाँ. Thank you, Swati. We are glad that you're enjoying this demo. Somebody had requested that we zoom and show. We'll do that towards the end because right now I don't want to disturb the setup. But when she's done, I will zoom and show you all the details. I would like to say something like some paintings, that's mostly all paintings, not some. My all paintings. आप अगर दूर से देखो तो ही अच्छा है, क्योंकि नजदीक से देखो तो आपको बस खाली कुछ स्ट्रोक्स ही मिलेंगे और उसका इम्पैक्ट दूर से ही आता है. फिर भी हम लोग दिखाएंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है. But sometimes that's the awe which we have, correct? कि अरे एक ऐसा स्ट्रोक है और वो ऐसा इम्पैक्ट दे रहा है दूर से. हाँ. Correct? When we see those details, like you feel कि few strokes, which seems random strokes also at times, but then how things fall in place in the eye when you view it from a distance, that's amazing. Thank you, Smita, for the compliment. I think being a artist, हम as an artist हमारा देखने का नजरिया एक होता ही है, which reflects in the photographs also. So if you're a practicing artist, you know कि what are you looking for also in a subject. Sometimes I visit places and it happens कि उस दिन the light is, very dead light है, but the subject is so beautiful. It's a overcast day, not proper. Like I always feel कि अरे यही subject
अच्छी लाइटिंग में कितना बढ़िया लगता है. बट देन आई स्टिल क्लिक कि वी एज एन आर्टिस्ट वी शुड इवन पेंट subjects where there are not strong lights and shadows. Still, are you able to get the mood, the feel of that weather? That's also a challenge. We should attempt even that, different kind of lighting. Especially architectural structures and all that. अच्छी लाइट एंड शैडोज नहीं हो तो यू लाइक इट डजंट, यू डोंट एंजॉय दैट मच. बट बढ़िया लाइट हो तो वही स्ट्रक्चर्स पेंट करने में बहुत मजा आ जाता है. वंडरफुल. अभी ये इसके लिए तो हो गया है. आंखों में तो काम ही नहीं किया. अच्छा. जब मैंने शुरू किया था ना तब मैंने पेस्टल का उतना अंदाज़ा नहीं था. उस वक्त मैं बहुत साइज में बड़े पोर्ट्रेट कर लेती थी क्योंकि वो जो थिकनेस रहती है पेस्टल की वो बड़े इसमें मैं मैच कर सकूं. ओके. धीरे धीरे क्या होता है कि इसकी आदत पड़ जाती है कि यानी वो उसको कहाँ पे पकड़ना चाहिए, कितना प्रेशर देना चाहिए, ऐसे करते करते अभी इस वजह से भी छोटा ये निकलना है तो धीरे धीरे आदत हो जाती है. एकदम पहले से तो नहीं होती. फिर भी यानी गलतियाँ तो होती है. इसको नेहा इज सेइंग ऐसा लगता है द पोर्ट्रेट विल स्पीक नाउ. सो अमेजिंग मंजरी मैम. थैंक यू. प्रिया पाटिल हम भी देख रहे हैं कि वो कब बोले. प्रिया पाटिल इज सेइंग नमस्कार. फार सुंदर झाले आहे. हाँ काम डेमो पहल्या फार छान वाटत आहे. थैंक यू प्रिया. I was reading Marathi, so I hope my pronunciation was fine. हाँ समझ में आ रहा है. ठीक है, रुकते हैं अभी यहाँ पे क्योंकि अगर इसमें काम हो गया तो ज्यादा हो जाएगा. तो ये ठीक लग रहा है अभी. अभी ये इसके शैडो में ब्लू नहीं है फिर भी मैं यूज कर रही हूँ ताकि कलर हार्मनी रहे. Okay. So you'll sign it now? या अभी पेंसिल से ही कर लेते हैं क्योंकि वो पेस्टल बड़ा है ना.
Thanks, Alka. She's saying this was a great capture, Hina. Yes. Thank you, Wonderful. Hina. Thank you so much. This was a wonderful demo, and I'm sure everybody's eagerly waiting to see a close up of it. Sure. I'll just share 1 second. Sure. दूर से भी दिखाना. Yeah, I'll show. Now, we were at an angle, so now they can actually see a अच्छा, ये straight, निकाल लेते हैं, yeah. एक मिनट, हाँ. So you can see the details. Yeah, just see how beautiful the expression is. And if you see from close, there are so many bold and loose strokes, but from far, it's all falling in place. Yeah. So, thank you so much, ma'am. It Thank was you for this, great. Connecting with all your Yeah, all our audience are really artist happy. friends, huh? Yeah. And at this point of time, I would like to give you a small token from HBAV. This is our branded apron, which we give only to artists who are connected with us. Oh, thank you And so so I hope you enjoy using this apron. Sure. I'll use it. Yes. Thank Yeah. you so much, Hina. Friends, I think I don't think any of you all have any questions left. If there are, हाँ पूछ सकते हैं. yeah, you can ask right now. Otherwise, we will wind up the session. If anybody has any questions left, please do ask. No, I think we have actually discussed answered, many yeah, things discussed while everything. And so I think all their queries are settled right now. So, okay, friends, we are calling off. But before that, I would like to tell you that we have planned that during this entire event, mostly Wednesdays and Saturdays, we'll have somebody or the other to give you a demo. So, but the timings we will announce as it is convenient for the artists. But most tentatively, it will be on every Wednesday and Saturday. In case it is not convenient for some artist on a Saturday, then we'll keep it on another day. But so please look forward to all our posts. We'll be informing you regarding who is giving the next demo. And thank you for staying patient and all the questions you asked. It made the session very interactive and fun. And once again, I think Manjri ma'am, you can say bye-bye to all the... Yes. Thank you, friends, for watching me so much patiently. And I will share a photograph of this demo work. So thank you so much. And this demo will be saved on the group. So if anybody needs to refer it in future, it will be there for you. See you all. Bye-bye.